Hello everyone, welcome. Today we are going to discuss question number 2 of exercise 3.1. This is also word problem. So earlier I told you when word problem is there, you first what you have to do, you have to read the question very carefully. Then you have to collect the information. Since it is a pair of linear equation, so there will be two informations. Those informations you have to understand, then you have to interpret into mathematical form. So now two equations has come. We know that what, then you have to find the variables what he is asking. So the asking is our variable, so x and y is the variables, are the variable of the equations. So after getting the equation, this equation to be converted into algebraic way. Algebraic way, you know the standard form of equation is what? For first equation we know a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and a2 for second equation a2x plus b2y plus c2 equals to 0. After this, then we should go for graph. We need a graph paper, a scale and a pencil, and without pencil and scale the graph should not be drawn. Okay, so now so you have to plot the coordinates on the graph paper, and then you see that it will two lines will come, because we have two equations, therefore two lines will come, and by seeing the equation we can say whether it is a unique solution, yeah the equation has many solution, yeah the equation has no solution. Algebraic way and geometric way या graphical वे में इसको रिप्रेजेंट करो कहा. तो अब देखेंगे क्या ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. So you see in this question what he has given, the coach of a cricket team. एक क्रिकेट टीम है, वो कोच क्या क्या बाइस 3 बैट्स, कितना है 3 बैट्स वो बाई किया, और कितने बॉल्स हैं 6 बॉल्स बाई किया. 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स टुगेदर bought for how much? 3,900 rupees. So this is our first information. So we wrote what? 3 bats 6 balls cost how much? 3,900 rupees. This is our first information. Okay, then next what is saying, later she buys a bat. A bat means one bat. This is one. one. This is one bat, and 3 more balls, that means 3 balls. 1 bat or 3 balls cost how much he paid? She paid 1,300. So this is our second information. These are the two information we got. That means there is two equations are there in this word problem, and that, so how to do? So what he is asking, the bat price we don't know, balls price we don't know, therefore we should assume the bat price. Let the price of the bat is x rupees and the balls price is, one ball price is y rupees. XY variable we can use here. Okay, after that, after formation of the equation, we should go for algebraic way. This thing, pen, bat. So we don't know here. So let's write, let the price of, let us assume, let the cost of one bat equals to x rupees. Okay. Similarly, the cost of one ball equals to y rupees. Okay, so now how much he bought it? He bought how many? 3 bats for first equation. So I'm putting the for the cost of 3 bats equals to 3 into x, हो गया 3x आ गया. अब लाएंगे the cost of how many balls? 6 balls, isn't it? 6 balls
इक्वल्स टू एक बॉल का प्राइस क्या है, y है, 6 बॉल्स का क्या होगा, 6y। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, क्या 3 बैट्स 3x प्लस 6y इक्वल्स टू हाउ मच, 3900। ठीक है, सो वी कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन। सो 3 से डिविजिबल है, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। ठीक है, सो इसको हमने क्या क्या रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने से हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन, लेकिन हम ग्राफ का वो जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो स्ट्रेट लाइन में लिखना है। अगर मैं भूल गई आप ये सारे लिख लोगे, यही इक्वेशन लिखना है वो स्ट्रेट लाइन में। जो इस इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन आया ग्राफ में, उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अभी मैं जस्ट याद दिला रही हूँ। 3 से डिवाइड करने से क्या हो गया, 3 1 3 प्लस 3 2 6y इक्वल्स टू 3 1 3 1300। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब चलेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी, द कॉस्ट ऑफ वन बैट है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹x, एक ही खरीदा। और द कॉस्ट ऑफ बॉल, द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, एक बॉल का प्राइस क्या लिया था, y लिया था, इसलिए ये हो जाएगा 3y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकेंड केस, सेकेंड केस भी कह सकते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम को, इन्फॉर्मेशन को। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज एल्जेब्रिकली कहा है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो क्या है हमारा इक्वेशन, क्या था, 3x वाला था ना, सो वो हो गया था हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 था, है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, सो a1 इज़ 1, सो देयरफॉर यू नीड नॉट राइट, x लिख लो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लस b1 हमारा क्या है, 2 है, ये 2 है b1, है ना, ये 2 है b1, सो यहाँ हम 2 लिख दे, b1 के पास 2 लिख दे। 2y प्लस c1 हमारा क्या है, ये है 1300, लेकिन प्लस ये वाला क्या है, इस तरफ को आ जाना चाहिए, ये c1 इस तरफ को, सो ये प्लस है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, माइनस से करेंगे। ठीक है, 1300 c1 है, सो c1 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म। देन सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c1 फॉर्म में करना है। ये भी सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इसको भी हम इधर को ले आएंगे, इसको तो हम इधर को ले आए थे, है ना। तो सिमिलरली ये हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना,
x का कोफिशिएंट 1 है तो x को x रख देंगे, प्लस b क्या है 3 है, b2 क्या है 3 है, सो 3y। सो ये c को इस तरफ लाने से क्या हो गया -1300 इक्वल्स टू 0। कंपेयर इसके साथ कंपेयर कर ले, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लास्ट को क्या है, तो एल्जेब्रिक फॉर्म क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म में, हाँ एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या है, x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। दूसरा है x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, graphically represent करना। For this what we have to do, we need a graph paper, isn't it, scale and these things. So first equation is what, 3x plus 6y equals to 1300, लेकिन इसको हम reduce कर दिया है, x plus 2y equal, sorry 39, this is 39। फर्स्ट ये है 39 और ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 39, दिस इज 1300, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द coordinates. So for that what happens, suppose this is all right, this is given like that. Suppose if the equation is this form, 3x plus 6y minus 3900, so that we reduce x plus 2y minus 1300 equals to 0 हम किए हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिस इज आवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी हैव टू चेंज व्हेन वी आर गोइंग टू plot the graph, this standard form is changed into this way, equation form is way, this way. That means what, the constant always should be after the equal, that means right hand side of the equation always you do, that is the first step. Second step what, कोई भी वेरिएबल को अकेला कर देना है। यहाँ देखो ये वेरिएबल अकेला ही है ऑलरेडी, इसलिए करने के तो इसको ही रखेंगे, बाकी सब को उस तरफ धक्का मार देंगे। तो प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 2y, अभी x इक्वल्स टू ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये x का वैल्यू लाना है, कैसे लाएंगे, ये y का वैल्यू कुछ एज्यूम करके डालेंगे ताकि x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये है ऐसा करेंगे, व्हेन y इक्वल्स, कुछ भी एज्यूम करेंगे, y इक्वल्स टू कितना करेंगे 200 कर लें, ठीक है, y इक्वल्स टू 200। तब अब पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू दिस, y का वैल्यू क्या है 200 है, यहाँ 200 पुट कर दिए। सो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 400। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 400 इज हाउ मच, 900 9 हाँ 900। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट बॉक्स। तो ये x है, ये y है, तो x हमारा क्या है 900, y क्या लिए थे हम 200 लिए। ये फर्स्ट सोल्यूशन है। सेकंड सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सेकंड सोल्यूशन के लिए व्हेन y इक्वल्स टू कितना लेंगे 300 ले लेंगे, ठीक है 300। तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 2 है, 2 इक्वेशन में क्या है 2 है, इसलिए 2 लिख दिए। y के जगह में हम क्या लिखेंगे, ये देखो 2y है, y के जगह में हम क्या लाएंगे, ये वाला है ना हमारा, इधर को ले आए 2 को 2 रख दिए, y के जगह में हम कितना लिए, व्हेन y इज 300। नाउ लेट मी राइट डाउन 300, ले नहीं तो बाद में गलत हो जाता है। सो 2 इंटू 300, राइट, दिस 300 we will put it over here. So x equals to 1300 minus 600, that equals to
x कितना आ गया 700, तो ये 700, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड इक्वेशन। ओके, लेट मी राइट दिस थिंग्स। ओके, देन सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। सो दिस इज ऑलरेडी इन दिस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऑलरेडी ऐसा है, बस इसको कर दिए। फिर वेरिएबल को अकेला कर देंगे, x को ये अकेला करेंगे, सो 1300 माइनस 3y। अगर आप कहोगे y को क्यों नहीं लेंगे, y में थोड़ा मुश्किल होगा, कैसा है देखो, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, तो 3y लेंगे, अकेला को रखे ये को, इसको 1300 लिख के ये x को इस तरफ ले आए, तो ये प्लस x वाला माइनस x हो गया। अब ये y को अकेला करना है, y रख दे, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए 1 के बिना, only 1 can be. So now this 3 will come. So you know when you do, so you have to find a whole number. x को एज्यूम करना पड़ेगा, x को क्या करने से वो 3 से डिवाइड, x का वैल्यू क्या लाने से 3 से डिविजिबल है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए ये हमारा इजी है, इसलिए हम ये वाला किए हैं। समझ में आ गया ना, इसलिए हम ये वाला x को अकेला रख दिए, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यहाँ, नहीं तो डिनोमिनेटर को फिर देखना पड़ेगा कैसा डिवाइड करने से पूरा होल नंबर आया, कितना पुट करना पड़ेगा, ये सारे ठीक है, वो बाद में, वो वैसा सम भी मैं बाद में समझाऊंगे। तो अभी इफ़ y इक्वल्स टू कितना लेंगे, y इक्वल्स टू 400 अगर ले तो 12, हाँ y इक्वल्स टू 400 लिए, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस ये 3 को, ये 3 यहाँ डाल दिया, y क्या है, ये 400 y है, तो ये y का वैल्यू क्या है 400 इंटू 400, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 1200, x इक्वल्स टू 100। हम तो बॉक्स बनाए नहीं, कोऑर्डिनेट बॉक्स हमेशा पहले बनाना है, नहीं तो हम वो बॉक्स, क्योंकि कभी वो डालना भूल जाएंगे, वैल्यूज गलत, कभी ये वैल्यू डाल दिए, x है y है, ये वैल्यू डाल दिए 100 डाल दिए, y के लिए कभी हम ये नहीं डाल के ये भी डाल देते हैं, इसीलिए हमको ऐसा करना है। 100 हो गया और 400 हो गया। अभी y को दूसरा सेकंड सोल्यूशन, अगर यहाँ क्या है सोल्यूशन क्या आया 100 और 400 आया फर्स्ट सोल्यूशन। ये सेकंड सोल्यूशन क्या है, सेकंड सोल्यूशन के लिए इफ़ y इक्वल्स टू क्या लेंगे, y को 3, अभी 400 लिए थे, अब 300 लेके देखेंगे। सो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, सो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 3 सा 900, दैट इज x इक्वल्स टू 400। हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है 400, x 400 है और y क्या है, x 400 देखा है यहाँ तो गलत, x 400 y 300, x 400 y 300, यहाँ x इस सोल्यूशन में ऐसा नहीं लिख के इसको ऐसा लिख देंगे बेटर, x इक्वल्स टू कितना है 100 कॉमा y इक्वल्स टू ये वाला 400, ठीक है। ये एक सोल्यूशन और ये एक सोल्यूशन आया, ठीक है। देखो ग्राफ, ये है हमारा ग्राफ है। सो फर्स्ट इसमें मैं रफ करके बता रही हूँ। अगर फर्स्ट क्या करेंगे, ये ग्राफ पेपर लोगे, पेंसिल और स्केल, पेंसिल से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे, ये हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। फिर एक वर्टिकल लाइन, कहीं भी ऐसा देख के यहाँ कहीं भी एक 10 स्मॉल डिवीजन होकर देखे, एक वर्टिकल लाइन खींच दिए, इसको कहते हैं क्या, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये देखो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ये वाला वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये है वर्टिकल लाइन, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका नाम देंगे एक्स डैश, इसका नाम देंगे, इसको
x कहेंगे, ये लाइन को x डैश एंड x कर दिए। तो अब ये जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसको कहते हैं ओरिजिन, ये 0 0 होते हैं। अब 0 से x डैश तक सब नेगेटिव मार्क्स करते हैं, 0 टू x तक सारे पॉजिटिव होता है, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। और y एक्सिस का भी 0 टू, इसका क्या है y और y डैश हो गया, तो 0 टू y ये सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 टू y डैश नेगेटिव होते हैं। ये सारे 9th में आपको हुआ है। फिर हम अभी देखेंगे हमारा क्या है, वैल्यूज़ क्या आया हुआ है। पहला वैल्यू आया था हमारा 900 एंड 200 आई बिलीव, पहला वैल्यू 900 एंड 200, या पहला आया था 900 और 200, और सेकंड सॉल्यूशन था हमारा 700 और 300 था। ये फर्स्ट इक्वेशन का था, है ना। और सेकंड इक्वेशन का सिमिलरली 300 400 लाइक दैट इज देयर, यू सी हियर 700 and 300 and 900 and 200, दिस इज 900 and 200, 700 300, ये वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा तो 1 यूनिट लेंगे तो 200 यूनिट्स कहाँ मिलेगा, हमारा ग्राफ पेपर छोटा है, इसलिए हम क्या किए 1 यूनिट को हम क्या लिए, ये है 1 यूनिट, 1 यूनिट का हम क्या लिए 200 लिए। फिर दूसरा 1 यूनिट के लिए हम क्या लिए ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक 200 400, फिर यहाँ से यहाँ तक 200 दैट इज 600, पूरा 600, ऐसा करके 200 करके हम कर दें। इधर का भी y एक्सिस का भी ऐसा, यहाँ से ये 1 यूनिट को 200, अनदर 1 यूनिट को 200, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 400 हुआ। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 600, लेकिन 1 यूनिट, हर यूनिट में 200 करके चले गए। और इधर का भी डिस्टेंस क्या है, माइनस की तरफ, यहाँ से यहाँ तक 200 डिस्टेंस, यहाँ का फिर 400 डिस्टेंस, यहाँ 0 से यहाँ तक 400 डिस्टेंस, यहाँ से 0 से यहाँ तक 600 डिस्टेंस, सिमिलरली 800 हो गया। ठीक है, ये क्यों माइनस लगाए, ये कुछ नहीं है। अगर सोचो एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, और यहाँ कुछ वेजिटेबल शॉप है, सोचो ये वेजिटेबल शॉप है, और ये वेजिटेबल शॉप है, ये है तुम्हारा लेट्स से ग्रोसरी शॉप है। सो ये बंदा यहाँ खड़ा है, वो कहेगा, 2 फ्रेंड्स हैं, वो ये फ्रेंड को वो फ़ोन करेगा, ये अपने फ्रेंड का ये घर है, दूसरा फ्रेंड ये जा रहे, सोचो इधर को गया, तो दूसरा फ्रेंड को पूछेगा, अरे तुम कहाँ हो, अब मैं अभी 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस, अगर सोचो उसका हाउस है ये अवे फ्रॉम 5 किलोमीटर, तो ये ठीक है। अगर इधर को है तो ग्रोसरी शॉप सोचो 2 किलोमीटर, मैं अभी 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस, तो कि इधर को इधर है या इधर है, कैसा पता चला। तो ये फ्रेंड कहा अगर माइनस वैल्यू अगर होगा तो ग्रोसरी शॉप के तरफ, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो वेजिटेबल के तरफ। सो कहेगा नेक्स्ट, वो कहेगा अच्छा ठीक है, तो फिर वो फ़ोन करेगा, तो अब कहाँ हो, वो कहेगा मैं -2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस। -2 किलोमीटर मतलब ये डायरेक्शन है, ग्रोसरी शॉप के तरफ डायरेक्शन है, और 5 किलोमीटर वेजिटेबल शॉप में हूँ, तो ये 5 या 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस कहने से ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव अगर होगा तो वेजिटेबल शॉप के तरफ, और नेगेटिव होगा तो ग्रोसरी शॉप के तरफ। वो कहे मैं 1 किलोमीटर -1 किलोमीटर दूर में हूँ, इसका मतलब ग्रोसरी शॉप की तरफ है। ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए ये माइनस, यहाँ भी ये 0 टू x डैश को बताने के लिए माइनस कर दिए। 200 का नहीं, इधर को होगा ना इधर को होगा, तो इसलिए 0 टू x डैश इज -200, 0 टू x डैश दिस पॉइंट इज व्हाट -400, दैट मीन्स 0 टू x डैश साइड you write 400 this way. Okay, this side is positive, similarly this one also same thing. Okay, so now let's see what is our things, 900 and 200. You see x का 900, यहाँ से ये 800 है, ये 1000 है, दोनों के बीच का ये मिडिल पॉइंट है, 900 ले लिया, और इसके साथ सीधा और क्या है 200 कहा, यहाँ 200 इसके साथ ये लाइन के साथ सीधा करके ये लाइन और ये लाइन जहाँ मीट किया वो पॉइंट हम लिए, दैट इज 900 and 200. So second is 700 and 300. 700 after 600 this is 700, and this side 200 400 के बीच में जो मिडिल पॉइंट है वो 300, इसको लेके यहाँ पॉइंट हुआ, ये 700 300, ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके
खींच दिया। अगर एक्स एक्सिस करना चाहिए था, वाई एक्सिस को काटना चाहिए था, लेकिन ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं, इसलिए मैं यही करके रख दिया, नहीं तो ये वाई एक्सिस को भी काटेगा। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हम कोऑर्डिनेट सारे लिख देंगे, बाद में इक्वेशन लिख लेंगे। कौन सा? वो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन 3x + 6y = 390, रेड्यूस वाला नहीं, 3900 लिख दिए। इसको हम L1 करके भी नाम दे दिए। सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स 400 एक है, 300 एक है, और दूसरा यहाँ क्या 100 और 100, 400 300, और दूसरा इक्वेशन 100, और यहाँ लिखा नहीं, ये वाला यहाँ से है ना, ये 100 और ये है 400, ये इसका साथ सीधा 400, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट्स ये लिख दिया 400 300 100। सो हमारा क्या 400 है, तो यहाँ ढूंढेंगे 400 ये है, ये 300 वाई के एक्सिस में देखेंगे, 200 और 400 बीच में 300 है, सो ये है 300, तो ये दोनों को यहाँ मीट किया, हो गया। फिर सेकंड इज व्हाट 100 and 400, दिस इज 0 to 200, middle point is 100 and 400 is this one, so you go straight this and this 100 जहाँ मीट किया ये वाला 100 हो गया, तो इसको हम पॉइंट आउट कर दिए। सो इसको लेकर लाइन खींच दिए। सो ये हो गया हमारा क्या है, 2 लाइन आ गया। सो ग्राफिकली वी रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।